Yes. Very good evening, boys and girls. I welcome you to yet another session of CA Foundation Economics. CA Foundation के इकोनॉमिक्स का हमने एक नया चैप्टर पढ़ना शुरू किया है जो कि है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के इस चैप्टर के अंदर हमने फर्स्ट यूनिट का पढ़ाई जो अभी शुरू किया है जो कि यूनिट नंबर 1 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में अभी तक हम बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। इसके अंदर से लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो था रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट कल जो मैंने पढ़ाया था पहले एक बार रिवाइज करेंगे। दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, राइट? दैट मीन्स एमपी एंड एपी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड यू कैन से एट द स्टार्ट एमपी इज इक्वल टू एपी। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ाते जाते हैं वैसे मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस। एक सेकेंड। Marginal product increases, average product increases, but marginal product is greater than average product. फिर उसके बाद तीसरे की हम बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, marginal product is decline, marginal product, एक सेकेंड, sorry, wait. Marginal product is equal to average product and AP is maximum. AP is maximum. एक लेवल पे राइज होने के बाद दोनों भी एक जगह पर आकर इंटरसेक्ट होते हैं। इंटरसेक्शन के पॉइंट पे एपीएमपी दोनों इक्वल हो जाते हैं और इस पॉइंट पे एवरेज प्रोडक्ट का ये मैक्सिमम होती है। फिर इसके बाद एमपी कर्व डिक्लाइन होने लगती है, एपी कर्व डिक्लाइन होने लगती है, बट मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट कर्व। दिस वाज द रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट एंड average product. What is total product? Quantity of output from the given input is my total product. Output per unit of input is called my average product and change in output due to change in input is called my marginal product. After understanding the three terms and also understanding the relationship between AP and MP, now let's move on to understanding one of the most important law of a production, that is the law of variable proportion, which is also called as the law of diminishing returns. The law of variable proportion of law of diminishing return is one of the production law which is applicable in short run, as we all know. In short run all the factors of production are constant, only labor is considered to be variable, and in long run all the factors of production are considered to be variable. लॉन्ग रन के लिए जो लॉ है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, जो हम बाद में देखेंगे। शॉर्ट रन के लिए जो लॉ है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। प्रोडक्शन फंक्शन को शॉर्ट रन में समझने के लिए जो लॉ हमें हेल्प करेगा वो है the law of variable proportion or the law of diminishing returns. हाँ या ना? Right? The law of diminishing return states increase in some input relative to other fixed inputs will give the state of technology cause output to increase, but after a point the extra output resulting from the same addition of extra input will become less and less. ये statement of law है। ये क्या है? Statement of law। अभी स्टेटमेंट ऑफ लॉ को थोड़ा सिंपल बनाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, बिकॉज इन शॉर्ट रन ओनली वन फैक्टर कैन बी चेंज्ड, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, राइट? विथ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट ऑफ वेरिएबल फैक्टर लीड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट up to a certain point, whereas the additional output produced with such an additional input diminishes after this point. Okay. Now the law of variable proportion operates only under short run, where all the factors of production are considered to be constant, only labor is considered to be variable. हाँ या ना? Now there are certain assumptions of law of variable proportion. There are certain assumptions of the law of variable proportion. First,
स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी शुड रिमेन कांस्टेंट। प्रोडक्शन फंक्शन को समझने के लिए शॉर्ट रन के अंदर गिवन इनपुट से कितना मैक्सिमम आउटपुट आता है यह अगर समझना है तो हमें अज्यूम करना होगा कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, क्योंकि अगर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बदल गई तो इस सिनारियो में क्या प्रोडक्शन में चेंज होगा? यस, प्रोडक्शन में चेंज होगा, लेकिन यह चेंज इनपुट की वजह से है क्या? नहीं, आउटपुट में जो चेंज दिखाई दे रहा है दैट आउटपुट चेंज विल बी ड्यू टू टेक्नोलॉजी, विल बी ड्यू टू टेक्नोलॉजी। We don't want to see the change in output due to change in technology. We want to learn the change in output due to change in input. Is output also dependent on technology? Yes or no? But we need to analyze the change in output due to input. इसलिए but obvious the technology has to be assumed to be constant. Second, labor is the only variable factor of production. Labor is the only variable factor of production in short run. All other factors are considered to be fixed. Labor is considered variable, all other are constant. The law does not operate when the factors are used in the fixed proportion. यानी one input is equal to one output, 2 is equal to 2, ये input है, ये output है, 3 is equal to 3, 4 is equal to 4, 5 is equal to 5. अगर इनपुट आउटपुट का रेशियो अगर फिक्स्ड है, यानी वन इनपुट गिव्स वन आउटपुट, तो ऐसे सिनारियो में ये लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है? जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट अप्लाई करते हैं तो शुरुआती दौर में प्रोडक्शन बढ़ता है एक पॉइंट तक, एक पॉइंट तक जहां तक वो बढ़ता है, उसके बाद एडिशनल इनपुट के बावजूद जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगता है, कम होने लगता है। लेकिन अगर प्रोपोर्शनेट चेंज है, यानी वन इनपुट इज इक्वल टू वन आउटपुट है, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, तो 100 रहा तो आउटपुट क्या रहेगा? 100। तो ये चेंज होना है क्या? नहीं। डिमिनिश होना है क्या? नहीं। लेकिन ये क्या बोलता है? डिमिनिश होता है। ये लॉ क्या बोलता है? एडिशनल इनपुट के साथ एक वक्त के बाद आउटपुट जो है, चेंज इन इनपुट के बाद चेंज इन आउटपुट जो है वो डिमिनिश होता है एक पॉइंट के बाद। तो ये लॉ ऐसे फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट आउटपुट में अप्लाई नहीं होता। जिन जिन प्रोडक्शन प्रोसेस में इतना इनपुट लिया तो इतना आउटपुट आता, ऐसा रेशियो फिक्स है इनपुट आउटपुट का, वैसे रेशियो के अंदर, वैसे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। हमारे एग्जांपल में क्या लिया? वन इनपुट इज इक्वल टू वन आउटपुट, ये रेशियो फिक्स है, तो मैंने 100 इनपुट लिया तो आउटपुट कितना आएगा? 100। उसमें कम होने की कोई संभावना है क्या? नहीं। सो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जहां पर काम होता है इनपुट आउटपुट के बीच में, वहां पर यह लॉ अप्लाई नहीं होता। अभी ओके? अभी ओके? यस। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव? द लॉ कंसीडर्स इनपुट एंड आउटपुट, डज नॉट कंसीडर प्रॉफिटेबिलिटी। यह लॉ ये नहीं देखता कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मेरा प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट कंसिडर्ड। ये लॉ सिर्फ एक ही चीज देखता है कि गिवन इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जा सकता है। भले वो मैक्सिमम आउटपुट के लिए कॉस्ट ज्यादा हो रहा, कम हो रहा, इज नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। सो दिस पर्टिकुलर लॉ डज नॉट कंसिडर प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। There are 3 stages of law of variable proportion. So these are all the assumptions of law of variable proportion. Assumptions क्या है? ये 5वां assumption नहीं है, यहाँ गलती से आया, ये assumption नहीं है, अगला पॉइंट यहाँ पर शुरू होता है। 4 ही assumptions है। State of technology should remain constant. Labor is one of the variable factor. Law does not operate to factors where fixed proportion is done, and law considers only input and output. It does not consider profitability. अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है बेटा, इसको 3 स्टेजेस में समझा जा सकता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को 3 स्टेजेस में समझा जा सकता है। स्टेज 1, it is called as stage of increasing returns. It is called as stage of increasing returns. चेंज इन इनपुट से चेंज इन आउटपुट जो हो रहा है, तो चेंज इन इनपुट से ज्यादा फास्ट अगर चेंज इन आउटपुट हो रहा है तो इसका मतलब आउटपुट ज्यादा निकल रहा है ना, है ना। तो हमने कल एमपी और एपी का
कर्व का और दोनों का रिलेशनशिप समझा। उस रिलेशनशिप में क्या देखा हमने, शुरुआत में एपी एमपी दोनों भी बढ़ रहे हैं, एपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादा फास्ट स्पीड से कौन बढ़ रहा है, एमपी। ज्यादा फास्ट स्पीड से क्या बढ़ रहा है, एमपी। सो कैन आई से change in input is bringing in more change in output, or due to change in input the output is changing by a faster rate, आया ना। due to change in input the output is changing by a faster rate, does that mean the production is increasing at a fast speed? अगर चेंज इन इनपुट के वजह से चेंज इन आउटपुट अगर फास्ट रेट से बदल रहा है, क्या इसका मतलब यह होता है कि मेरा टोटल प्रोडक्ट ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। सो जितने मैं इनपुट डाल रहा हूं उस इनपुट के मुकाबले मेरा आउटपुट ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, उस मुकाबले मेरा आउटपुट ये ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। जितना इनपुट दे रहे हो चेंज इन इनपुट के मुकाबले चेंज इन आउटपुट ज्यादा है, चेंज इन इनपुट के मुकाबले चेंज इन आउटपुट ज्यादा है, यानी जितना इनपुट डाल रहे हो उससे ज्यादा आउटपुट निकल रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्या कहते हैं इसे, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, हाँ या ना। यहां पे अपने को वो ऊपर का जो स्केड्यूल है उसका रेफरेंस लगेगा, 2 मिनट। यस, मेंटेन साइलेंस। ये देखो मैंने क्या किया, ऑलरेडी सभी स्टेजेस के हिसाब से यहां पे स्टेज बनाकर रखी, राइट। तो स्टेज 1 क्या है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अंडर दिस स्टेज टीपी इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट, चेंज इन इनपुट इज ब्रिंगिंग मोर चेंज इन आउटपुट। तो टोटल प्रोडक्ट फास्ट बढ़ेगा या टोटल प्रोडक्ट कम स्पीड से बढ़ेगा, फास्ट। देखो शुरुआती दौर में एमपी जब बढ़ रहा है फास्ट स्पीड से 100 से 110, 110 से 120, 120, राइट, 100 से 110, 110 से 120, इस फेज को ऑब्जर्व करो। इस फेज के अंदर टोटल प्रोडक्ट भी देखो, 100 का 210, 210 का 330, बरोबर। टोटल प्रोडक्ट की बढ़ने की स्पीड ज्यादा है, ऐसा क्यों, क्योंकि शुरुआती दौर में मार्जिनल प्रोडक्ट ये ज्यादा स्पीड से बढ़ता है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट ये ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा, जब मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा, इससे क्या मतलब समझ में आता है, जितना मैं चेंज इन इनपुट कर रहा हूं उसके मुकाबले जो चेंज इन आउटपुट आ रहा है वो ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। अगर आउटपुट ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है तो इससे मेरा टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज हेंस कॉल्ड एज स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि आउटपुट ये इनपुट से ज्यादा है, आउटपुट ये इनपुट से ज्यादा है। जब अपने को आउटपुट ज्यादा मिल रहा है, हम इनपुट कम डाल रहे हैं, तो रिटर्न ज्यादा मिलते हैं, रिटर्न कम मिलते हैं, रिटर्न ज्यादा, इसीलिए नाम दिया इसको स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम ड्यूरिंग दिस स्टेज, और ये कब तक कंटिन्यू होता है स्टेज समझने की कोशिश करो। एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम ड्यूरिंग दिस स्टेज। Point S is the intersection of AP and MP curve denotes the end of stage 1. अब यहां पर क्या बोला है, ड्यूरिंग दिस स्टेज एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। कल हमने देखा था वेयर इज एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम, पहले दोनों एक जगह से स्टार्ट होते हैं, फिर बाद में दोनों बढ़ने लगते हैं। एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट ये एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा स्पीड से बढ़ता है, और बाद में जाकर ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं। उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे एवरेज प्रोडक्ट ये मैक्सिमम होता है। तो बेटा ये जहां पे शुरू हुए थे, यहां से स्टेज 1 की शुरुआत हुई है,
यहां से स्टेज 1 की शुरुआत हुई है, दोनों इस पॉइंट एस पे आके इंटरसेक्ट हो गए. सो एस इज द पॉइंट वेयर एमपी एंड एपी आर इक्वल. एमपी एंड एपी आर इक्वल. एमपी एंड एपी आर इक्वल. At this point MP and AP are equal, and this is the point where AP is maximum. So the point where AP is maximum, the point where the AP and MP curve intersect marks the end of stage 1, that is stage of increasing return. हमारा जो स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, जहां पर चेंज इन इनपुट ब्रिंग्स अबाउट ग्रेटर चेंज इन आउटपुट, ये वाला स्टेज जो स्टेज 1 है बेटा, हमारा कहां पर खत्म होता है, जहां पर MP इज इक्वल टू एपी. वेयर MP इज इक्वल टू एपी एट दैट पॉइंट मार्क्स द एंड ऑफ स्टेज 1. इसलिए यहां पर क्या दिया है, स्टेज 1. देखो लाइन मारी, देखो ऊपर से ये लाइन 1 एस पॉइंट से निकली ऐसी है ना. सो ये इधर का जो लेफ्ट साइड का जो भी पार्ट है, ये मेरा क्या है, स्टेज 1. अभी तीनों स्टेज में देखो एपी बढ़ रहा है, एमपी बढ़ रहा है, बट ऑब्वियस एपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है, तो टीपी बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा. तो मेरा एमपी कर्व, टीपी कर्व भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इस स्टेज में. My marginal product is rising, my average product is rising. Undoubtedly change in input is bringing about change, greater change in output. But obviously what do you expect from the TP curve? It will also rise. The TP curve will also rise. लेकिन यहां पर एक और पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. स्टेज 1 also sees the point of inflection. Stage 1 also sees the point of inflection. Point of inflection is the point where MP is maximum. Where MP is maximum. ठीक है, अब ये MP कर्व ऑब्जर्व करो, ये मेरी MP कर्व है, ये वाली है ना, आया ना, जिसको मैंने रेड कलर से निकाला है. अब इस MP कर्व का मैक्सिमम पॉइंट ये है क्या, आया ना. अब इस मैक्सिमम पॉइंट से अगर मैं मेरे टोटल प्रोडक्ट कर्व पे एक लाइन निकल तो पॉइंट F पे आता है, आया ना, जो दिखाई दे रहा है पॉइंट F पे. पॉइंट F पे आया क्या, आया ना. MP कर्व जहां पर मैक्सिमम है, वो कर्व का जो मैक्सिमम पॉइंट है, वहां से मैंने एक लाइन TP पे निकाली और TP पे जो पॉइंट आया वो पॉइंट F है, आया ना. इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है बेटा जहां पर चेंज इन इनपुट ब्रिंग्स अबाउट मैक्सिमम चेंज इन आउटपुट. क्या बोला मैं, चेंज इन इनपुट ब्रिंग्स अबाउट मैक्सिमम चेंज इन आउटपुट. जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट हाईएस्ट होता है, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट हाईएस्ट होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. यानी उस पॉइंट पे जितना भी आप इनपुट डालोगे वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट देगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेंज इन आउटपुट देगा. जैसे कि अगर हम हमारे नंबर्स वाले इसमें ऑब्जर्व करें, देखो ये 120 है एमपी, इज 120 द हाईएस्ट एमपी, हाई ना. सो ये क्या हुआ मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. क्या हुआ मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां आता है, यूनिट नंबर 3. जब 3 लेबर में लगाऊंगा तो मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसे होता है. तो 3 लेबर के वक्त मेरा टीपी जो है, टीपी के ऊपर जो पॉइंट आता है वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टीपी पे वहां आता है जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट हाईएस्ट है. मार्जिनल प्रोडक्ट हाईएस्ट कहां पर है, 3rd यूनिट पे. तो 3 यूनिट या टोटल प्रोडक्ट ऑफ 330 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहां मिलता है हमें, स्टेज 1 में. कहां पर मिलता है हमें, स्टेज 1 में, हाँ या ना. यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट. समझ रहा है क्या, कुछ नहीं समझ रहा तो बताओ, मैं बोल दूंगा और एक बार, ठीक है. पॉइंट F ऑन द टीपी कर्व is the point of inflection. Point of inflection is drawn on the TP curve from the MP curve where MP is maximum. जैसे मैंने अभी निकाला, देखो TP कर्व से MP कर्व से TP कर्व पे निकाला, राइट. हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे लिया, हमने MP कर्व के मैक्सिमम पॉइंट से TP कर्व पे पॉइंट लिया, और TP कर्व पे जो वो पॉइंट आता है उसे कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे चेंज इन इनपुट brings about maximum change in output, or you can say at this point
मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। अभी ओके, नाउ दिस इज स्टेज 1। तो स्टेज 1 को हम क्या कहते हैं? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। टीपी, एमपी, एपी तीनों की तीनों बढ़ रहे हैं, तीनों की तीनों बढ़ रहे हैं। ये स्टेज कहां खत्म होता है बेटा? जहां पर एपी इज मैक्सिमम। एपी कहां मैक्सिमम है बेटा? जहां एमपी और एपी इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर हमारा स्टेज 1 खत्म हो जाता है, वहां पर हमारा स्टेज 1 खत्म हो जाता है। नाउ कम टू स्टेज नंबर 2, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद मेरा एमपी कर्व डिक्लाइन हो रहा है, मेरा एपी कर्व डिक्लाइन हो रहा है। एमपी इज डिक्लाइनिंग, एपी इज डिक्लाइनिंग, अनडाउटेडली टोटल प्रोडक्ट भी मेरा कम होता जाएगा या बढ़ेगा? कम होता जाएगा। इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इस स्टेज को हमने क्या नाम दिया है? स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। डिमिनिशिंग का मतलब डिक्रीजिंग नहीं होता, डिमिनिशिंग का मतलब डिक्रीजिंग नहीं होता, डिमिनिशिंग का मतलब होता है स्लो रेट ऑफ ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसे हम? स्लो रेट ऑफ ग्रोथ। यानी एमपी एपी दोनों गिर रहे हैं, इसके वजह से टोटल प्रोडक्ट की स्पीड कम हो गई है, बट इट इज नॉट डिक्लाइनिंग। डिमिनिशिंग डज नॉट मीन डिक्लाइनिंग। अब इसे हमने क्या नाम दिया है? स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। यानी इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है? चेंज इन इनपुट इज ब्रिंगिंग इन चेंज इन आउटपुट, बट चेंज इन इनपुट इज ग्रेटर देन चेंज इन आउटपुट। जितना बदल हम इनपुट में कर रहे हैं, उसके मुकाबले जो आउटपुट बदल रहा है वो कम प्रोपोर्शन से बदल रहा है। यानी इस स्टेज में इनपुट ज्यादा लग रहे हैं और आउटपुट मेरा कम आ रहा है। तो पहले स्टेज में जैसे इनपुट कम थे, आउटपुट ज्यादा आ रहा था, तो जितने फास्ट स्पीड से टोटल प्रोडक्ट मेरा बढ़ रहा था, क्या अब मेरा टोटल प्रोडक्ट उसी स्पीड से बढ़ेगा? क्या मेरा टोटल प्रोडक्ट उस स्पीड से बढ़ेगा? नहीं, मेरा टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, लेकिन अब उस टोटल प्रोडक्ट की बढ़ने की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि एमपी फॉलिंग है, एपी फॉलिंग है। एमपी फॉलिंग है, एपी फॉलिंग है, एमपी फॉलिंग है, एपी फॉलिंग है। और ये स्टेज वहां खत्म होता है जहां एमपी इज इक्वल टू 0। टोटल प्रोडक्ट कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक एमपी पॉजिटिव है। अगर आपको याद है टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3 so on till marginal utility of n। याद आया? ठीक वैसे ही टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 2 प्लस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 3 so on till marginal product of n। हाँ या ना? हाँ या ना? as long as this is positive the TP will keep on increasing। लेकिन जैसे ही लेट्स से मार्जिनल प्रोडक्ट एट 4 इज -10 यूनिट्स, सो टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा या फिर अब माइनस होने की वजह से टोटल प्रोडक्ट घटने लगेगा? टोटल प्रोडक्ट घटने लगेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? यस और नो? राइट। सो एज लॉन्ग एज एमपी इज पॉजिटिव, एज लॉन्ग एज एमपी इज पॉजिटिव, योर टोटल प्रोडक्ट कर्व विल नॉट डिक्लाइन, इट विल बी डिमिनिशिंग। पहले वाले स्टेज में सभी इंक्रीज हो रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हमने नाम दिया स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। सेकंड वाले स्टेज में एमपी फॉल हो रहा है, एपी फॉल हो रहा है बेटा, लेकिन सेकंड वाले स्टेज में बेटा एमपी पॉजिटिव है। एज लॉन्ग एज द एमपी इज पॉजिटिव, योर टोटल प्रोडक्ट विल नॉट फॉल, योर टोटल प्रोडक्ट विल नॉट डिक्लाइन। लेकिन जिस स्पीड से रॉकेट की तरफ पहले स्टेज में हम बढ़ रहे थे, जिस स्पीड से एमपी कर्व बहुत फास्ट बढ़ रही थी, अब एमपी कर्व बढ़ नहीं रही है, एमपी कर्व घट रही है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है लेकिन स्पीड जो है वो उतर गई है, तो इसके वजह से टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, लेकिन उतने स्पीड से बढ़ रहा है कि जैसे पहले बढ़ रहा था फर्स्ट स्टेज में नहीं। तो यहां पे देखो, ऑब्जर्व करो, टोटल प्रोडक्ट कर्व सेकंड स्टेज में बढ़ रहा है बेटा, मेरा ग्रीन वाला देखो ये बढ़ रहा है,
लेकिन यहां से फटाक से ऐसे रॉकेट की जैसे ऊपर चला गया, सेकंड स्टेज में बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने का कर्व एकदम स्लो हो गया, एकदम क्या हो गया मेरा, स्लो हो गया। अभी नंबर्स की तरफ आओ, देखो शुरुआती दौर में मेरा फर्स्ट स्टेज कहां पर है, जहां तक ये इक्वल नहीं होते, बरोबर, ये इक्वल कहां पर है, इस पॉइंट पे, यहां मेरा फर्स्ट स्टेज आके खत्म होता है। तो पहला 3 पॉइंट जो है, सॉरी पहले 3 ही है, पहले 3 पॉइंट मेरे कहां आते हैं, पहले 3 पॉइंट कहां आते, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इसमें एमपी बढ़ रहा है, देखो 100, 110, 120, टोटल प्रोडक्ट भी फास्ट बढ़ रहा है, 210, 330, 440, हाँ या ना, हाँ या ना। फिर बाद में चौथे पॉइंट पे दोनों भी इक्वल हो गए, दोनों इक्वल है, यहां पे स्टेज 1 खत्म हो गया, स्टेज 2 शुरू हो गया, स्टेज 2 शुरू हो गया। फिर इसके बाद क्या है मेरा, स्टेज 3, स्टेज 3, हाँ या ना। अब इसमें देखो एमपी पॉजिटिव है, 80, 80, 70, 50, 40, लेकिन एमपी अब गिरने लगा है, एमपी अब मेरा गिरने लगा है, हाँ या ना, एमपी मेरा गिरने लगा है। टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है बेटा, लेकिन जिस स्पीड में यहां बढ़ रहा था अब उस स्पीड से यहां बढ़ रहा है क्या, नहीं, टोटल प्रोडक्ट की बढ़ने की स्पीड कम हो गई, क्योंकि अगर 1 यूनिट से 100 आउटपुट आता है तो 9 यूनिट में कितना आना चाहिए था, 900, कितना आ रहा है मेरा, 700, यानी बढ़ने की स्पीड कम हो गई है, बढ़ने की स्पीड कम हो गई है। निगेटिव है क्या, टोटल प्रोडक्ट देखो बढ़ता रह रहा है, अभी तक कम हुआ है क्या, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा इस पूरे एग्जांपल में क्या है, पॉजिटिव है। एज लॉन्ग एज द मार्जिनल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, टीपी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन इस वाले पॉइंट के बाद जहां पर एमपी इज इक्वल टू एपी और उसके बाद एमपी और एपी डिक्लाइन करने लगते हैं, उसके बाद टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है बेटा, लेकिन बढ़ने की स्पीड कम हो जाती है, इसीलिए इसे कहते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। रिटर्न्स मिल रहे हैं लेकिन ये रिटर्न अब स्लो हो गए हैं, डिमिनिश हो गए हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसे स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न या डिक्लाइनिंग रिटर्न मत समझना, क्योंकि यहां पे टीपी बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने की स्पीड कम हुई है, इसीलिए स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हम इसे कहते हैं, हाँ या ना, हो कि नहीं, हो कि नहीं। तो टीपी यहां पे बढ़ रहा है, एमपीएपी कम हो रहा है, टीपी बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने की स्पीड टीपी की बेटा अब कम हो चुकी है। ये स्टेज कहां खत्म होता है? दिस स्टेज ends where marginal product is 0. यहां देखो, is this the point where my marginal product is 0? यहां पे देखो मेरा स्टेज 2 मैंने खत्म कर दिया है, यहां देखो मैंने मेरा स्टेज 2 खत्म कर दिया कि नहीं किया, है या ना? This stage ends where marginal product is 0, and at that point where this stage ends where the marginal product is 0, total product is maximum. ये स्टेज कहां खत्म हुआ? ये नीचे वाले M पॉइंट पे, यहां से ऊपर मैंने H पॉइंट पे ये बनाई। अब ये पूरी टीपी को ऑब्जर्व करो, क्या उसका हाईएस्ट पॉइंट ये H है कि नहीं? सो स्टेज 2 is called as stage of diminishing return. Diminishing return does not mean declining return. In this stage, MP is falling, AP is falling, but as long as MP is positive in this stage, TP keeps on increasing, but it increases at a diminishing rate. This stage ends where MP is 0. This stage ends where MP is 0. This stage ends where MP is 0. Haya na? And where MP is 0, this stage ends, and that is the point on the TP curve which is the maximum. यानी टीपी जो है टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम कहां पर होता है? एट द एंड ऑफ स्टेज 2. तो ऐसे एमसीक्यूज आते हैं, टीपी इज मैक्सिमम एट विच पॉइंट, देन यू हैव टू रिमेंबर स्टेज 2 ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. इस तरह से एमसीक्यू आएंगे, डोंट एक्सपेक्ट कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे, इस तरह से ट्विस्टिंग किया जाता है। तो तुम्हें इतना कंसेप्चुअल क्लियर रहना पड़ेगा। वेयर डू यू फाइंड मैक्सिमम टोटल प्रोडक्ट? तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के डायरेक्ट स्टेजेस रहेंगे। तुम बोलेंगे सिखाया इसने, तो इतना बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? किसी को समझ में नहीं आया? अभी समझ में आया? चलो ठीक है। अब ये हो गया पहला स्टेज, ये हो गया सेकंड स्टेज। देखो इसका रीडिंग कर लेते एक बार। एट दिस स्टेज टीपी इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। डिक्लाइनिंग है क्या बेटा? नहीं, क्योंकि एमपी जब तक पॉजिटिव है तब तक डिक्लाइनिंग टोटल प्रोडक्ट
नहीं होता। टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन कब से होगा बेटा? जब एमपी निगेटिव होगा। Here diminishing rate of return does not mean negative return but increases at a smaller rate. This stage ends at a point where marginal product is zero. जहां marginal product zero हो गया वहां ये स्टेज खत्म हो गया, और उसी पॉइंट पे अगर हम टोटल प्रोडक्ट देखेंगे तो टोटल प्रोडक्ट क्या है बेटा? मैक्सिमम। हाँ या ना? Point where MP is zero, point M is where the TP is maximum, that is at point H on the total product curve. Now तीसरे स्टेज को हम कहते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। पहले वाले स्टेज में आउटपुट वॉज फार ग्रेटर देन द इनपुट, यानी चेंज इन आउटपुट वॉज फार ग्रेटर देन चेंज इन इनपुट। सेकंड वाले स्टेज में चेंज इन आउटपुट वॉज ग्रेटर देन चेंज इन इनपुट कि नहीं? नहीं। कल की रिलेशनशिप याद करो, क्या है रिलेशनशिप? पहले दोनों भी इंक्रीजिंग है, फिर सेकंड वाले में इक्वल है, थर्ड वाले में डिक्लाइनिंग है, यानी चेंज इन आउटपुट इज लेस देन द चेंज इन इनपुट। लेकिन यहां पे इनपुट और आउटपुट के बीच का फासला कम है। जैसे पहले में इनपुट कम लग रहा था, आउटपुट ज्यादा निकल रहा था। अब यहां पे इनपुट ज्यादा लग रहा है, आउटपुट निकल रहा है, लेकिन उतना भी कम नहीं निकल रहा। लेकिन जब हम तीसरे स्टेज की बात कर रहे हैं, वहां पे हम इनपुट ज्यादा ही ज्यादा लगाए जा रहे हैं, वहां पर हम इनपुट ज्यादा ही ज्यादा लगाए जा रहे हैं, और आउटपुट वहां पे क्या आ रहा है मेरा? नेगेटिव आ रहा है। आउटपुट क्या आ रहा है मेरा? नेगेटिव। यानी मैं इनपुट डालते जा रहा हूं और वो आउटपुट ही जनरेट नहीं कर रहा। When I am using the inputs beyond point zero, इसका मतलब क्या है? मैं इनपुट देते जा रहा हूं, there is change in input but there is no change in output. That means इस थर्ड पॉइंट पे marginal product will become negative. Marginal product will become negative. अब तीसरे पॉइंट में देखो, ये स्टेज कहां से शुरू होता है? जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव हो गया है। हमने अभी क्या देखा? टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्ट एट 1 प्लस मार्जिनल प्रोडक्ट एट 2 प्लस मार्जिनल प्रोडक्ट एट 3 एंड सो ऑन टिल मार्जिनल प्रोडक्ट एट n. लेट्स से मार्जिनल प्रोडक्ट एट 1 is 10, मार्जिनल प्रोडक्ट एट 2 is 20, मार्जिनल प्रोडक्ट एट 3 is 30, बट मार्जिनल प्रोडक्ट एट 4 is -10. तो जब तक पहले 3 यूनिट थे तब तक मेरे टीपी इंक्रीजिंग था। पहले था 10, फिर था 30, फिर हो गया 30 प्लस 20, 50 प्लस 10, 60। लेकिन जब हम फोर्थ यूनिट पे गए 60 माइनस 10 हो गया, तो वो कितना हो गया? 50। तो जैसे ही मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव हो गया, मेरा टोटल प्रोडक्ट बढ़ने की जगह क्या होने लगा बेटा? डिक्लाइन। बढ़ने की जगह क्या होने लगा? डिक्लाइन। हाँ या ना? क्योंकि यहां पे इनपुट तो आ रहा है लेकिन उसके बदले में आउटपुट कुछ ही नहीं आ रहा, उल्टा नेगेटिव आउटपुट आ रहा है। उल्टा क्या आ रहा है? नेगेटिव आउटपुट। जैसे कि विष्णु ऑलरेडी 5 चपाती यहां तक आ गई थी, जबरदस्ती पप्पा आके ठूस दिए 6ठी चपाती, यानी वॉमिटेड, तो यूटिलिटी आई नहीं, उल्टा अंदर की एनर्जी लेकर चले गई, तो देयर वाज नेगेटिव यूटिलिटी। बियॉन्ड सब पॉइंट अगर उसके आगे कंजम्पशन किया तो उसको नेगेटिव यूटिलिटी हो गई। जितनी जरूरत है उससे बहुत ज्यादा, मतलब जितनी अंत तक जरूरत है लेबर की, उससे ज्यादा भी जबरदस्ती का अगर आप लेबर डालोगे तो उसमें से आउटपुट निकलने वाला है क्या? निकलने वाला है क्या? अब मेरे क्लास में टीचर की रिक्वायरमेंट 6 है, मैं 6 टीचर को 6 हेल्पर अपॉइंट कर लूंगा। मैं 6 टीचर को 6 हेल्पर और 6 हेल्पर को और 6 हेल्पर अपॉइंट करूंगा, तो उन 6 हेल्पर की प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी बेटा? 0। क्या रहेगी? 0। अल्टीमेटली एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर काफी है, तो 6 टीचर जब तक रहेंगे तब तक प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। लेकिन एक एक टीचर को एक एक हेल्पर दे दिया तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, वो हर चीज उसके ऊपर ढकलना शुरू कर देगा। वो हेल्पर को भी और हेल्पर दे दिया तो प्रोडक्टिविटी नेगेटिव होने लगेगी। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है क्या? तो तीसरे स्टेज में क्या हो रहा है? हम सिर्फ इनपुट बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन हमारा आउटपुट नहीं बढ़ रहा, उल्टा आउटपुट नेगेटिव हो रहा है। उल्टा आउटपुट क्या आ रहा है? नेगेटिव। चेंज इन इनपुट इज क्रिएटिंग नेगेटिव चेंज इन आउटपुट, दैट मींस मार्जिनल प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस स्टेज इज नेगेटिव। जैसे मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट का नेगेटिव हो गया तो मेरा टोटल प्रोडक्ट विल आल्सो स्टार्ट टू डिक्लाइन।
टोटल प्रोडक्ट विल ऑल्सो स्टार्ट टू डिक्लाइन, राइट। एपी तो नेगेटिव है ही मेरा। एक हमेशा याद रखो, एपी कर्व इज नेवर जीरो, वो एक एवरेज है। एवरेज कभी जीरो होता है क्या? एवरेज कभी जीरो होता है क्या? होता है क्या? नहीं, एवरेज कभी जीरो नहीं होता, एवरेज कभी जीरो नहीं होता। तो एपी कभी जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब एपी कर्व कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। अनडाउटेडली इट इज फॉलिंग बट इट विल नॉट टच, बट एमपी इज नेगेटिव ड्यूरिंग दिस स्टेज। नेगेटिव एमपी से टीपी बढ़ेगा या कम होगा? अब टीपी मेरा कम होने लगा है, क्योंकि अब एमपी नेगेटिव है तो टीपी मेरा फॉलिंग है, हाँ या ना। तो टोटल प्रोडक्ट मेरा कम हो रहा है, इनपुट बढ़ रहा है लेकिन आउटपुट कम हो रहा है। बढ़ना तो छोड़ दो, इनपुट बढ़ रहा है आउटपुट तो कम हो रहा है, तो इसे मैं क्या कहूंगा? स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न ही कहूंगा ना, हाँ या ना। जहां पे बढ़ रहा था उसे हम पॉजिटिव रिटर्न कहा, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कहा। जहां पे बढ़ नहीं रहा, स्लो स्पीड से बढ़ रहा है, उसे डिमिनिशिंग रिटर्न कहा। लेकिन इनपुट जब बढ़ने से नुकसान हो रहा है तो उसे हम पॉजिटिव कहेंगे क्या? नहीं, उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव। इसलिए इसे नाम दिया गया स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। टीपी टेंड्स टू डिक्रीज ड्यूरिंग दिस स्टेज, एमपी टेंड्स टू बी नेगेटिव ड्यूरिंग दिस स्टेज व्हिच लीड्स टू डिक्रीज इन द टीपी। ऑल द कर्व्स टीपी, एपी, एमपी फॉल ड्यूरिंग दिस स्टेज। इस स्टेज के अंदर जब इनपुट डाल के कुछ आउटपुट ही नहीं, तो टीपी भी नेगेटिव रहेगा, टीपी भी फॉलिंग रहेगा, एपी भी फॉलिंग रहेगा और एमपी भी फॉलिंग ही रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज कॉल्ड एज द थ्री स्टेजेस, दिस इज कॉल्ड एज द थ्री स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल proportion. Yes, any doubt? Any doubt? So how do we summarize these three stages? Law of variable proportion. There are three stages of the law of variable proportion. पहला वाला स्टेज क्या है बेटा? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अभी स्टेज में क्या होता है बेटा? यस एवरीवन, एपी, एमपी, टीपी ऑल आर इंक्रीजिंग, ऑल आर इंक्रीजिंग। इसके बाद एपी इज मैक्सिमम, एपी इज मैक्सिमम, देयर इज पॉइंट ऑफ inflection. Point of inflection is the point on the TP curve where MP is maximum, where MP is maximum. This stage ends where MP is equal to AP. यहां पर आउटपुट ज्यादा स्पीड से बढ़ता है इनपुट के मुकाबले, चेंज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन द चेंज इन इनपुट। मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा स्पीड से चेंज होता है, इसीलिए हम कहते हैं इसे स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। दूसरा आता है स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स में टीपी इज नॉट falling because MP in this stage still remains positive, still remains positive. ये शुरू कहां पर होता है स्टेज? जहां पे MP is equal to AP। इसके बाद क्या होता है बेटा? MP is falling, AP is falling, TP is falling? No, TP is not falling. Why? Because MP is positive. TP is increasing but at diminishing rate, but at diminishing rate. This stage ends where MP is equal to 0 and at this point TP is maximum. हाँ या ना? Yes or no? फिर तीसरा स्टेज हमने देखा, this third stage is called as stage of decreasing, or you can call as stage of decreasing also, or you can also call it as stage of negative returns. Stage of negative returns कहां से शुरू होता है? जहां पर MP is equal to 0। इसके बाद क्या होता है बेटा? TP is falling, MP is falling, AP is फॉलिंग। और इस स्टेज में क्या देख रहे हैं बेटा? हम इस स्टेज में हम ये देख रहे हैं कि MP इज इक्वल टू नेगेटिव।
क्योंकि एमपी नेगेटिव है तो मेरा टोटल प्रोडक्ट क्या है, फॉलिंग है, डिक्रीजिंग है, इसीलिए हम स्टेज को कहते हैं स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड द 3 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अभी क्लियर? किसी कुछ पूछना है? किसी कुछ पूछना है? अब इसका रीजन हम देखेंगे। सबको सब समझ में आ रहा है? सब समझ गया? ये इंक्रीज है, वो इंक्रीज, इसलिए वो इंक्रीज है, फिर वो डिक्रीज है, वो डिक्रीज है, इसलिए वो इंक्रीज हो, लेकिन डिमिनिशिंग में तीनों भी कम हो रहे हैं, इसलिए वो भी डिक्रीजिंग है, वो सब समझ में आया। लेकिन इसके फैक्चुअल रीजनिंग क्या है? ये ऐसा ही क्यों है? ऐसा भी सोचो, ये ऐसा ही क्यों? ये शुरुआत में बढ़ ही क्यों रहा है? ये शुरुआत में बढ़ ही क्यों रहा है? फिर ये सेकंड स्टेज में कम ही क्यों हो रहा है? और थर्ड स्टेज में निगेटिव ही क्यों हो रहा है? ऐसा क्या वजह है? सो वी नीड टू नो द रीजंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। चलो एक एक करके देखते हैं, 10 मिनट का पार्ट है। रीजंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल स्टेज प्रोपोर्शन और द 3 stages of law of variable proportion. What are the different reasons for the 3 stages of law of variable proportion? अब हम पहले स्टेज की बात करते हैं, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अब पहले स्टेज में क्या होता है? एमपी, एपी, टीपी तीनों भी इंक्रीज होते हैं। एमपी फास्ट रेट से इंक्रीज होता है तो टीपी भी फास्ट रेट से इंक्रीज होता है, हाँ या ना? चेंज इन आउटपुट फास्ट रेट से है तो टोटल प्रोडक्ट भी फास्ट रेट से ही इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा, हाँ या ना? ये स्टेज कहां खत्म होता है? जहां एपी एमपी क्या है बेटा? मैक्सिमम। एपी एमपी क्या है? इक्वल, सॉरी, वेयर एपी इज मैक्सिमम एंड एमपी एंड एपी आर इक्वल, हाँ या ना? ड्यूरिंग दिस स्टेज टीपी इंक्रीजेज at increasing rate and stage where AP is maximum. Now reasons. First stage की रीजन क्या है? Fixed factor of production is more efficiently used. Fixed factor of production is more efficiently used. Increase in the efficiency of the variable factor and indivisibility of fixed factor of production. 3 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है? Production is more efficient, fixed factor of production is more efficiently used. यानी कंपनी में जो फिक्स्ड एसेट है वो शुरुआती तौर में अच्छे एफिशिएंसी से इस्तेमाल किए जाते हैं। देयर इज इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। शुरुआती में नए नए जब वो एक्सपीरियंस लेता है तो वेरिएबल फैक्टर जो लेबर है उसकी एफिशिएंसी बढ़ने लगती है अनुभव के साथ। और देयर इज इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम किसी भी तरह से डिवाइड नहीं कर सकते। इसे हमें एक डायग्राम से समझना है, राइट? अब देखो रीजंस। फर्स्ट, क्वांटिटी। बजाज ऑटोमोबाइल्स हैव 5 प्रोडक्शन लाइन ए बी सी डी। लेट्स से बजाज का जो औरंगाबाद प्लांट है उनके 4 असेंबली लाइन है, 4 प्रोडक्शन लाइन है एक ही फैक्ट्री में, सॉरी 5, ए बी सी डी ई 5 ऐसे प्रोडक्शन लाइन है। कितने हैं? 5 प्रोडक्शन लाइन। एक प्रोडक्शन, सभी पांचों की पांचों प्रोडक्शन लाइन फुल्ली ऑटोमेटेड है, लेकिन हर एक लाइन को ऑपरेट करने के लिए क्या एक लेबर तो भी लगेगा? एटलीस्ट एक लेबर तो लगेगा ना। लेट्स से रोबोट ठीक पूरा सब कुछ एकदम परफेक्ट है, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट निकालने के लिए कुछ कम ज्यादा हो तो उसे चेक करने के लिए एक लेबर तो लगेगा। तो उन्होंने 5 ऐसे मशीन लाइन लगाई है, 5 असेंबली लाइन है। एक लाइन में एक बाइक, दूसरी लाइन में दूसरी, तीसरी लाइन में तीसरी, चौथी लाइन में चौथी, पांचवी लाइन में पांचवी। यानी बजाज की फैक्ट्री में 5 असेंबली लाइन है और 5 असेंबली लाइन में एक साथ 5 बाइक बनती है। ओके ओके। तब लेट से इन्होंने नया प्लांट बनाया और नया प्लांट में अभी 5 असेंबली लाइन है, उन्होंने एक भी लेबर अभी तक अपॉइंट नहीं किया है। फिर वो पहला लेबर लगाते हैं। पहला लेबर जो है, पहला व्यक्ति जो ए है, वो 100 बाइक्स निकालता है प्रोडक्शन। कितना निकलता है? 100 बाइक का प्रोडक्शन निकलता है। नाउ हमने यहां पर क्या बोला है? फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट डिविजिबल। थोड़ा थोड़ा काम करके नहीं बांट सकता है, उसे एक ही मशीन लाइन पे काम करना होगा। एक लेबर एक मशीन लाइन पे काम कर रहे हैं, यानी 4 मशीन लाइन अभी भी खाली पड़े हैं। तो अभी 5 मशीन लाइन में से एक ही मशीन लाइन चल रही है। एक मशीन लाइन पे एक लेबर लगा दिया है ए, वो 100 का आउटपुट निकाल रहा है। फिर थोड़े दिनों बाद, थोड़े वक्त के बाद हमने एक और दूसरा लेबर लगा दिया जो कि है बी। देखो प्रोडक्शन प्रोसेस में धीरे धीरे हम इनपुट को बढ़ा रहे हैं और इनपुट फैक्टर क्या है? वेरिएबल लेबर। हम सिर्फ लेबर को चेंज कर रहे हैं क्योंकि यह लॉ शॉर्ट रन में अप्लाई होता है और शॉर्ट रन में सिर्फ एक ही वेरिएबल फैक्टर होता है जो कि है लेबर। अब देखो
2 लेबर लगाते ही स्टेज 1 में, हम कहां पर है, स्टेज 1 में। अब जहां पे एक लेबर 100 आउटपुट निकाल रहा था, 2 लेबर 210 आउटपुट निकाल रहा है। एक का 100 तो 2 के कितने होने चाहिए बेटा, 200, लेकिन 2 से कितना निकल रहा है, 210। इससे मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, वेरिएबल फैक्टर जो लेबर है उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। वो कैसे बढ़ती है समझने की कोशिश करो। असेंबली लाइन एक नया काम है, नया तजुर्बा है। दूसरा लेबर आने से पहले पहला लेबर ए ऑलरेडी असेंबली लाइन पे काम कर रहा था, उसने कितनी गाड़ियां बनाई, 100 गाड़ियां। तो असेंबली लाइन में आ रहे छोटे मोटे प्रॉब्लम का उसको अनुभव आ चुका है, प्रोडक्शन कैसे फास्ट निकालने का उसका उसे अनुभव आ चुका है। लेट से नया जब कोई व्यक्ति आता है तो वो 100 गाड़ियां ही निकालता है, तो अब हमने बी व्यक्ति को अपॉइंट किया जो सेकंड असेंबली लाइन पे काम करेगा, लेकिन पहले असेंबली पे काम करने वाले लोग ऑलरेडी 100 गाड़ियां बना चुका है, उसका अनुभव अब थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। कंपेरेटिवली बी अगर 100 निकाल रहा है तो ए अब 10 एक गाड़ी तो उससे ज्यादा निकालेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने पीछे 100 गाड़ी का प्रोडक्शन किया था, तो उसे कुछ ज्यादा मालूमात है, 2-4 प्रॉब्लम उसने ज्यादा देखे हैं और उसका 2-4 एक्सपीरियंस, 100 गाड़ी का एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। देखो कोई भी काम में एफिशिएंसी कब बढ़ती है, जब हम कंटिन्यूअसली करते हैं काम। मेरी टीचिंग में एफिशिएंसी कब बढ़ी, जब मैं कंटिन्यूअस बेसिस पे टीचिंग करता गया। टीचर की एफिशिएंसी कब बढ़ती है, जब आप कंटिन्यू टीचिंग करो। स्टूडेंट की एफिशिएंसी कब बढ़ती है अकाउंट्स में, जब आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करो। ठीक उसी तरह से ऑलरेडी जब हमने सेकंड लेबर लाया तो सेकंड लेबर नया है, चलो वो एक लेबर एक असेंबली लाइन पे 100 का प्रोडक्शन करेगा, लेकिन पहला लेबर ऑलरेडी पहले लाइन पे काम करके एक बार में 100 मशीन 100 बाइक निकाल रहा था। क्या उसके अनुभव के बाद जो 100 बाइक का जो उसने अनुभव लिया है, अब उसके बाद जब वो दूसरे लेबर के साथ काम करेगा, क्या प्रोडक्शन में थोड़ा सा बढ़ाव हम देख सकते हैं ड्यू टू द एक्सपीरियंस इज हैविंग नाउ। सो इसी को हम कहते हैं, यहां रीजनिंग में लिखा है देखो, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। पहले लेबर की एफिशिएंसी बढ़ी है जिसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट थोड़ा सा फास्ट स्पीड से बढ़ा है, हाँ या ना। फिर हमने क्या किया, तीसरे लाइन पे तीसरे लेबर को डाल दिया, तो तीसरे लाइन में प्रोडक्ट क्या हो गया मेरा 330। अब पहले दोनों लोग अनुभवी हो गए, पहले दोनों लोग अनुभवी हो गए, तीसरा नया आ गया, तीसरे नए ने तो 100 बनाए, लेकिन पहले दोनों पक्के हो गए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई, तो पहले दोनों ने मिलकर बना लिए 230 और नए ने तीसरे ने बना लिया 100, तो इस हिसाब से पूरी एफिशिएंसी कितनी हो गई मेरी 330। चेंज इन इनपुट के साथ देयर इज चेंज इन आउटपुट, लेकिन आउटपुट ये ज्यादा स्पीड से चेंज हो रहा है। फिर हमने चौथे मशीन लाइन पे चौथा व्यक्ति डी लगा दिया, हर मशीन लाइन पे एक व्यक्ति लगता है। अभी तक हमने फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एक मशीन लाइन यानी एक फिक्स्ड फैक्टर, एक फिक्स्ड एसेट, एक फिक्स्ड लाइन, मेरा एक प्रोडक्शन लाइन है। तो यहां पे पहला पॉइंट क्या है, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज मोर एफिशिएंटली यूज। ऑलरेडी मुझे 5 मशीन लाइन पे कितने लेबर की जरूरत है, 5। अभी तक तो मैंने 5 लगाए नहीं, इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड फैक्टर को मैं एफिशिएंटली यूज करना शुरू कर दिया हूं। शुरुआती स्टेज में फिक्स्ड फैक्टर को एक मशीन लाइन में एक लेबर लगना है, तो जैसे मैं एक एक लेबर लगा रहा हूं वैसे वैसे मेरा जो फिक्स्ड फैक्टर है, जो मेरी मशीन लाइन है, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना मैंने शुरू किया है। और जैसे जैसे मैं लेबर बढ़ाते जा रहा हूं वैसे वैसे लेबर की एफिशिएंसी बढ़ रही है, और बढ़ती लेबर की एफिशिएंसी की वजह से मेरा चेंज इन आउटपुट ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, इसीलिए स्टेज 1 में इंक्रीजिंग रिटर्न दिखता है। समझ तो क्या है, समझ रहा है क्या मेरी बात, हाँ या ना। अब 5वें मशीन लाइन पे 5वां व्यक्ति लगा दिया, 5वें मशीन लाइन पे 5वां व्यक्ति लगा दिया, आउटपुट हो गया मेरा 600, आउटपुट हो गया मेरा 600, हाँ या ना। आउटपुट मेरा हो गया 600। अब पहले 4 मशीन लाइन पे जो 4 लोग व्यक्ति काम करते वो चारों हो गए अनुभवी, वो चारों के पास हो गया एक्सपीरियंस। उसमें से पहले मशीन पे काम करने वाला बहुत ज्यादा अनुभवी हो गया, उसने अभी तक इन लोगों के साथ भी काम किया है, तो वो तो पहले से था, उसके अनुभव का कुछ ना कुछ एफिशिएंसी का कुछ ना कुछ फायदा ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा और हम प्रोडक्शन में बढ़ाव देख सकते हैं। तो पहले वाले जो स्टेज है इसके अंदर हम फिक्स्ड कैपिटल को, फिक्स्ड एसेट को या फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ठीक तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मेरी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो 5 मशीन लाइन जिसे हम चेंज नहीं करते, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सभी है,
सिर्फ एक ही फैक्टर वेरिएबल है शॉर्ट रन में, वो है लेबर। हम सिर्फ यहां देखो लेबर को बदल रहे हैं। क्या हम मशीन लाइन बढ़ा रहे हैं क्या? ऐसा मैंने बोला कि हम छठा लेबर लाएंगे तो हम छठी मशीन लाएंगे? नहीं, हम छठी मशीन लाइन बना नहीं सकते, क्योंकि ऑल अदर फिक्स्ड फैक्टर्स, ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड और कांस्टेंट अंडर शॉर्ट रन। यानी जो भी बढ़ाना है, लेबर बढ़ाना है, मशीन लाइन 5 ही रहेंगे। छठी मशीन लाइन मैं शॉर्ट रन में नहीं बना सकता। अब देखो मेरे पास 5 मशीन लाइन थी, मैंने 5 मशीन लाइन पे 5 लेबर लगा दिए, पांचों मिलकर अब 600 का आउटपुट निकाल रहे हैं। पहले वाले लेवल पे मैं पहुंच गया। इफिशियंसी अब बहुत अच्छी है, लेबर की इफिशियंसी अच्छी है, चेंज इन इनपुट के साथ चेंज इन आउटपुट है, लेकिन चेंज इन आउटपुट ये ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। लेबर को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है, क्योंकि ये शॉर्ट रन है। इसके बावजूद अगर अब मैं लेबर बढ़ाता चलूं तो फिर मैं अभी स्टेज 1 से कहां चला जाऊंगा? स्टेज 2। स्टेज 2, स्टेज 2 start from the point where AP is maximum and ends at the point where MP is 0. What is happening in this stage? ऐसा क्यों होता है कि मेरा MP falling है, मेरा AP falling है और TP is increasing but increasing at a diminishing rate? तो उसकी वजह है inadequate factor of production. Can I change the machine lines? Can I change the machine lines? Can I change the assembly lines? क्या छठे लेबर के लिए मैं एक और मशीन लाइन लगा सकता हूं क्या? अगर मैं छठे लेबर के लिए छठी मशीन लाइन लगाता रहा तो मेरा टोटल प्रोडक्ट कम होगा ही नहीं, मेरा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है क्या? नहीं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है बेटा? टोटल प्रोडक्ट एक पॉइंट तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद बढ़ेगा थोड़ी कम स्पीड से और फाइनली उसके बाद डिक्लाइन करना शुरू करेगा। अगर मैं लेबर बढ़ाता गया, साथ में मशीन लाइन बढ़ाता गया, तो मेरा टोटल प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता ही रहेगा, वो कभी कम होगा ही नहीं। इसीलिए क्या अजम्पशन है? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी टू रिमेन कांस्टेंट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम सिर्फ एक ही वेरिएबल फैक्टर रख सकते हैं, वो है लेबर। अब मेरे पास 5 मशीन लाइन थे, तो मैंने 5 मशीन लाइन पे 5 लेबर को लगा दिया। अब अगर मैं छठा लेबर लगाता हूं तो क्या उसके लिए मेरे पास और कोई मशीन लाइन बची है क्या? नहीं। तो इस स्टेज में मुझे क्या देखने को मिलेगा? इनएडिक्वेट फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या देखने को मिलेगा? इनएडिक्वेट फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। छठे लेबर को काम देने के लिए अलग से मेरे पास मशीन लाइन नहीं है, इसका मतलब मेरे पास इनएडिक्वेसी है। किस चीज की? फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये जो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेरे पास है, इसको मैं डिवाइड भी नहीं कर सकता, ऐसा कहना है। क्योंकि प्रोडक्शन लाइन को अगर मैं 2 हिस्सों में बांट दूं और एक हिस्सा अगर मैं एक लेबर को दे दूं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जैसे 5 मशीन लाइन को अगर मैं डिवाइड कर दूं, फर्स्ट मशीन लाइन विल बी डिवाइडेड इन 1A and 1B, second in 2A and 2B and so on. So मेरा एक लेबर यहां काम कर लेगा, एक लेबर यहां काम कर लेगा, एक लेबर यहां काम कर लेगा, एक लेबर यहां काम कर लेगा। अगर मेरा फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिविजिबल रहा तो एडिशनल लेबर को मैं एडिशनल काम दे सकता हूं, फिक्स फैक्टर को डिवाइड करके। मशीन लाइन के काम को 2 हिस्सों में बांटकर एक लेबर को आधी लाइन पे, एक लेबर को आधी लाइन पे, ऐसे दोनों को मैं फिक्स्ड एडिक्वेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकूंगा, तो मेरी प्रोडक्टिविटी कम होगी ही नहीं। यह मान लो कि जो मशीन लाइन का काम है इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी जो भी काम करना है वो एक ही तौर पे दोनों को साथ में करना है। क्योंकि अगर डिवाइड कर दिया तो आधा काम एक को दे दूंगा, आधा काम एक को दे दूंगा, इससे काम की स्पीड बढ़ने लगेगी और टोटल प्रोडक्ट बढ़ता ही रहेगा, कभी कम होगा ही नहीं। लेकिन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहते हैं? एक पॉइंट के बाद टोटल प्रोडक्ट ये कम होना ही चाहिए, टोटल प्रोडक्ट कम होना ही चाहिए। तो जैसे ही मैं 5 मशीन लाइन पे 5 लेबर लगा देता हूं, छठा लेबर जब मुझे लगाना है तो मेरे पास इनएडिक्वेसी है फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मैं डिवाइड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से एडिशनल लेबर को मैं कुछ काम असाइन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अगर मैं छठा लेबर लगाता भी हूं तो मुझे ऑलरेडी काम कर रहे किसी लेबर के साथ ही उसे जोड़ना होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें तीसरा रीजन क्या दिया उन्होंने? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी उस मशीन लाइन की टेक्नोलॉजी का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है जिसका इस्तेमाल करके आप प्रोडक्शन कर सको, क्योंकि मशीन लाइन का कोई सब्स्टिट्यूट हो गया और उससे अगर एडिशनल लेबर का प्रोडक्शन निकलता रहा, लेट्स से मशीन लाइन हमने बढ़ाई नहीं और लेबर कुछ सब्स्टिट्यूट करके खुद बैठ के मैकेनिक करके अगर बाइक का प्रोडक्शन कर रहा है, तो टोटल प्रोडक्ट मेरा बढ़ता रहेगा, कम कहां पर होगा? समझ में आया? 5 लेबर 5 मशीन लाइन पे बैठे हैं, तो 5 लेबर 5 मशीन लाइन में प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। छठा लेबर ला रहा हूं, उसके लिए मेरे पास मशीन लाइन नहीं है, क्योंकि बाकी सब फैक्टर्स फिक्स्ड है और ये मशीन लाइन को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर डिवाइड कर दिया तो एक लेबर को एक हिस्से पे, दूसरे लेबर को दूसरे हिस्से पे डालकर मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता हूं। लेकिन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? प्रोडक्शन ये कम होना चाहिए। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, यानी मशीन लाइन का कोई भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। यानी बैठे बैठे मैकेनिक जो है अपने असेंबलिंग करके बाइक नहीं बना सकता, क्योंकि ऐसा हो गया तो छठा, सातवां लेबर, आठवां लेबर, नौवां लेबर, 10वां लेबर ये मैं बढ़ाता जाऊंगा और उनको बैठे बैठे बाइक जो है असेंबल करने बोलूंगा हाथ से, और मेरा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, प्रोडक्शन कभी कम होगा ही नहीं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट नहीं होगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्ट्रिक्टली क्या कहता है? शुरुआत में एक बार बढ़ने दो, फिर एक जगह पे आके इक्वल होने दो और फिर उसके बाद वो गिरना चाहिए और बाद में वो नेगेटिव होना चाहिए, फॉल होना चाहिए। आई गेट माय पॉइंट? अब इस वाले स्टेज में इनएडिक्वेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है देखो, अब मेरा वही एग्जांपल है। मशीन लाइन क्या है मेरी? ए बी सी डी ई, है या ना? मेरे पास 5 लेबर थे, ए बी सी डी और ई, राइट? अब समझ लो मैं छठा लेबर लगाता हूं बेटा। अब ये देखो, जब मैं पहला लेबर लगा रहा था, जब मैं पहला लेबर लगाया था, तब मेरा पहले लेबर का आउटपुट कितना था बेटा? 100 था, बरोबर। अब मैं छठा लेबर लगा रहा हूं, तो छठे लेबर के लिए मेरे पास छठी मशीन लाइन नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी व्यक्ति के साथ एडजस्ट करना होगा। ये मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, बरोबर, ऐसा लेबर है। तो फिर मैंने क्या किया? पहले लेबर के साथ एक और एडिशनल हेल्पर दे दिया। तो पहला व्यक्ति बहुत अनुभवी है, उसको एक हेल्पर दे दिया, थोड़ा सा काम उसका आसान हो गया है, थोड़ा सा काम उसका आसान हो गया है, तो थोड़ा बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जहां एक व्यक्ति पूरा काम करता था, अब 2 लोग मिलकर काम कर रहे थे। जहां एक अकेला लेबर 100 का प्रोडक्शन निकाल रहा था, अब दोनों मिलकर कितने निकाल रहे हैं? 120। देखो टोटल प्रोडक्ट बड़ा है। पहले एक ही वही लेबर उसी मशीन लाइन पे बैठ के कितना प्रोडक्शन निकाल रहा था बेटा? 100। अब उस प्रोडक्शन लाइन पे गाड़ियां कितनी निकल रही है? 120। टोटल प्रोडक्ट बड़ा है, लेकिन एक 100 निकाल रहा था, 2 कितने निकालने चाहिए थे? 200, लेकिन 2 मिलके कितना निकाल रहे हैं? 120। यानी टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, लेकिन कम स्पीड से। समझता है का? आया ना? अब मैंने 7वां लेबर ला लिया, तो मशीन ए जो थी उसमें एक हेल्पर डाल दिया मैंने, उसमें मैंने एक हेल्पर डाल दिया। अब मैं जब 7वां लेबर लाऊंगा तो वापस से मेरे पास और मशीन लाइन नहीं आएगी, तो मुझे वापस से उसको किसी न किसी के साथ असाइन करना होगा। इस तरह से मैं 7वां लेबर लाया, 8वां लेबर लाया, 9वां लेबर लाया और 10वां लेबर लाया। ऐसे और मैं 5 लेबर को अपॉइंट कर लिया। अब ये जो नए से 5 अपॉइंटेड लेबर है, ये पहले वाले हमारे मैकेनिक के हेल्पर बन जाएंगे। ठीक है, अनडाउटेडली इसके वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन उतनी स्पीड से बढ़ेगा क्या? नहीं। जहां पे 2 लेबर मिलकर 210 निकाल रहे थे, अब 2 लेबर प्लस 2 हेल्पर, 2 लेबर प्लस 2 हेल्पर मिलकर कितना निकाल रहे हैं? 230। वहां पे 2 210, तो 4 कितना निकालने चाहिए थे? वो हिसाब से 420। कितना निकल रहे हैं यहां पे? 230। 400 230 है क्या? वो कितना है देखो, जो भी है 210 है ना बेटा। 2 लेबर 210 निकाल रहे हैं, 2 लेबर 210 निकाल रहे, 2 लेबर 2 मशीन लाइन के, उनके 2 हेल्पर कितने हो गए? 4। 2 दूनी 4, 2 210 निकाले तो 4 कितने निकालने चाहिए? 420। कितने? 420। लेकिन 4 मिलके 2 लेबर, इधर देखो, 2 लेबर और उनके 2 हेल्पर मिलकर कितना निकाल रहे हैं? 230।
पहले से आउटपुट बड़ा है, लेकिन जैसे जितने स्पीड से इनपुट बढ़ा है क्या उतने स्पीड से आउटपुट बढ़ रहा है क्या? आउटपुट बढ़ा है तो टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, लेकिन टोटल प्रोडक्ट की बढ़ने की स्पीड डिमिनिश हो गई है। क्या हो गई बेटा? डिमिनिश हो गई है, क्योंकि यहां पर अब हम फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनएडिक्वेसी महसूस करने लगे हैं। फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर डिविजिबल होता तो सारे मशीन लाइन को हम दो हिस्सों में बांट देते, एक लेबर को एक हिस्से में, दूसरे लेबर को दूसरे हिस्से में, ऐसे हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से का काम करता और टोटल प्रोडक्ट बढ़ता ही रहता, कभी कम नहीं होता। तो हम स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न देख नहीं पाते। स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि मशीन लाइन की इनएडिक्वेसी है, लेबर की एफिशिएंसी अब धीरे धीरे कम होने लगी है। अब जो मैकेनिक खुद से पूरा काम कर रहा था, उसके हाथ के नीचे आदमी आ गया तो वो क्या करेगा? हर काम उसके ऊपर ढक लेगा, अरे पाना लगा रहे, ये लगा रहे, वो लगा रहे। अब वो दूसरा व्यक्ति भी काम कर रहा है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी कम है, क्योंकि मेन मैकेनिक जो जो बोलेगा वो उसको सुनना है। हेल्पर का काम खाली हेल्प करना है, असिस्ट करना है, वो खुद से तो ज्यादा कुछ करना नहीं है। मेन इंजीनियर बैठे बैठे काम करता रहेगा, वो खाली पानी ला, ये ला, वो ला करते रहेगा, खाली उठने करने का इसका काम कम हुआ तो प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने की स्पीड बेटा कम हो गई। हाँ या ना? पहले देखो 3 लेबर कितना निकलते थे प्रोडक्ट? 3 लेबर 330, 4 लेबर 460, 5 लेबर 600। अब यहां पर देखो 350, 480 और 620, सभी जगहों पर टोटल प्रोडक्ट बेटा बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने की स्पीड अब कम हो गई। इनपुट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, उसके मुकाबले आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन आउटपुट के बढ़ने की स्पीड कम हो गई है। इसीलिए स्टेज 2, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। क्या आउटपुट कम हुआ है क्या? नहीं, आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने की स्पीड कम हुई है। यानी मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे इस प्रोडक्ट क्या है? यहां पर पॉजिटिव है। मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो रहा है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? पॉजिटिव है। एज लॉन्ग एज द मार्जिनल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, टीपी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। देखो यहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का है, तो यहां पे क्या है? 120, यहां पे क्या है? 230 माइनस 120 कितना है? 230 माइनस 120 110, यहां पे 350 माइनस 220 120, यहां पर 130, यहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट जो है क्या 160 है क्या वो? हाँ, अब देखो यहां मार्जिनल प्रोडक्ट तुम देखोगे कि बढ़ रहा है 114। अरे क्या मैच करते रहे तुम? अब तुम बोलोगे सर यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है, लेकिन बेटा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू 2 लेबर्स ना। पहले एक लेबर के हिसाब से बढ़ता था, अब ये 2 के हिसाब से बढ़ता है, तो ये कितना हुआ? 60। तो उस हिसाब से ये डिवाइड बाय 2 करते रहो तो कम होगा। ओवरऑल लॉजिक समझ में आ रहा है तुमको? रीजनिंग समझ में आ रही है? अब थर्ड स्टेज, थर्ड और फाइनल स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है? निगेटिव रिटर्न। थर्ड स्टेज में क्या होता है? निगेटिव रिटर्न। टीपी फॉलिंग, एमपी फॉलिंग, एपी फॉलिंग, एमपी बिकमिंग नेगेटिव। यानी इसके बाद भी अगर आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाओ तो चेंज इन वेरिएबल फैक्टर विल गिव यू नेगेटिव प्रोडक्ट, विल गिव यू नेगेटिव प्रोडक्ट, और यू कैन से नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट। चेंज इन इनपुट विल गिव यू change in negative output. If there is change in negative output, marginal product will be negative, and if marginal product is negative, your TP will start to fall, right? TP, MP, AP curves are declining curves during this stage. MP is negative, TP also decreases. हाँ या ना? Now what is the reason? Quantity of variable factor is too excessive for the fixed factor, because fixed factor cannot be changed in long run. Short run. In short run, only one particular factor, that labor, can be changed. अब देखो मशीन लाइन वॉच है A B C D E, इसमें ये 10 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। क्या मैं मशीन लाइन बदल सकता हूं क्या? क्या मैं मशीन लाइन बदल सकता हूं क्या? नहीं, सिर्फ एक ही फैक्टर बदल सकता हूं, वो है लेबर। 10 फैक्टर के बाद और भी मेरे को लेबर बढ़ाने का है, तो मैंने 11वां लेबर लगा दिया, 12वां लेबर लगा दिया, 13वां लेबर लगा दिया, 14वां लेबर लगा दिया, 15वां लेबर लगा दिया। है या ना? पहले एक लेबर 100 आउटपुट निकालता था, 1+1, फिर वही 2 लेबर मिलकर 120 निकालने लगे। अब एक लेबर पहले का, दूसरा हेल्पर
हेल्पर का सब हेल्पर और टोटल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं 100, क्योंकि पहले 2 लेबर तो काम कर रहे हैं, तीसरा खाली मुंह देख रहा है। ऑलरेडी पहला अनुभवी काम कर रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है अनुभवी व्यक्ति अब काम करके माज गया है, उसको बैठे बैठे पगार खाने की, वो जैसे पुराने होते ना, वो नए को दे चल काम कर, वो अपने अनुभव का इस्तेमाल नहीं करता, वो खाली बैठा रहता चेयर पे, चल उचल, वो खाली बैठे बैठे वहां पे ऑर्डर कर, क्योंकि जो पुराना रहेगा कंपनी में उसका कमांड रहेगा, वो क्या करता है चेयर पे बैठे बैठे बोलता चल काम कर। तब नए जो दूसरे 2 है, उसका हेल्पर और उसके हेल्पर का हेल्पर अब वो काम कर रहे हैं, और पहला व्यक्ति मस्त सीट पे बैठ के ऑर्डर छोड़ रहा है, जो सबसे पुराना है, होता है ना ऐसे, सबसे अनुभवी यहाँ चेयर पे बैठ के ऑर्डर छोड़ रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई 0। ये दोनों मिलके कितने बना रहे 100, पहले 1 बनाता था 100, अब 3 बना के बनाना 100, तो इससे अपना टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि अब मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव होता जा रहा है। 100 to 120, 300 यानी एमपी इज -20 नाउ, एमपी इज -20, -20 होते मेरा टोटल प्रोडक्ट कम हो जाएगा। आया ना, एक्चुअली वो वहां पे गलत हुआ कि अपन वो कंपेयर गलत किए, क्योंकि यहां पे 100 है वो बेटा, यहां पे 100 है, यहां पर कितना है 120, तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है बेटा 20, 100 माइनस यहां से कंपेयर करना था, वो यहां से कंपेयर करना था। अब ये मेरा 120 है, अब ये मेरा 100 हो गया, तो यहां क्या हो गया -20, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया मेरा -20। हाँ या ना, तो पहले लाइन में जैसे ही दूसरे तीसरे हर लाइन में आप एक व्यक्ति अनुभवी है जो चेयर पे बैठ के ऑर्डर छोड़ रहा है, जिसकी प्रोडक्टिविटी 0 है, उसका एक हेल्पर है वो काम कर रहा है, उस हेल्पर का भी हेल्पर है जो खाली हाँ हूं बोल के पानी नहीं ला रहा है, जो पहले पानी दे रहा था अब वो फिटिंग कर रहा है, जो नया आया है वो पानी दे रहा है, और जो पहला था वो चेयर पे बैठ के खाली तमाशा देख रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी 0 हो चुकी है। एक लेबर एक मशीन लाइन पे जहां एक लेबर की जरूरत थी, अब उस मशीन लाइन पे आपने 3-3 लोग लगा दिए, तो बट अब तीनों के पास काम है क्या? नहीं, तीनों की प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए एक्सेसिव वेरिएबल फैक्टर हो चुका है। लेबर एक्सेसिव हो रहा है क्या यहां पर? यस, लेबर एक्सेसिव हो रहा है क्या? यस। इस वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव होता है और टोटल प्रोडक्ट मेरा डिक्लाइनिंग होता है। एक्सेसिव वेरिएबल फैक्टर फॉर फिक्स्ड फैक्टर, अगर फिक्स्ड फैक्टर के लिए एक्सेसिव वेरिएबल फैक्टर हो गया तो उसके निगेटिव रिटर्न ही आते हैं। इसका मतलब चेंज इन इनपुट इज जनरेटिंग निगेटिव आउटपुट, तो टीपी अनडाउटेडली विल डिक्लाइन। तो देखो अब पहले 2 जो है 230 बना रहे थे, अब 3 जो है अब वो कितने बना रहे हैं? 210। 3 जो है वो कितने बना रहे हैं आप? 210, राइट। फिर थर्ड लाइन में 3 नंबर का लेबर प्लस उसका हेल्पर 350 बना रहे थे। अब थर्ड लाइन में पहला वाला लेबर, हेल्पर, उसका हेल्पर, तीनों मिलकर कितने बना रहे हैं? 330। 2 मिलकर कितना बना रहे थे? 350। 3 मिलके 330। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है मेरा? निगेटिव। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है मेरा? निगेटिव। फिर पहले चौथे में चौथा वाला लेबर प्लस उसका हेल्पर 480 बना रहे थे, चौथा वाला लेबर उसका हेल्पर मेरा है 460। फिर से क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा नेगेटिव, टीपी क्या होगा मेरा? डिक्लाइनिंग। और फिर 5वां लेबर उसका हेल्पर बना रहे थे 620, अकेला 5वां लेबर, 5 लेबर जो थे पूरे 5 लेबर कितना बना रहे थे? 600। पूरे 5 लेबर कितना बना रहे थे? 600। 5 लेबर प्लस 5 हेल्पर यानी 10 लोग मिलकर कितना बना रहे हैं? 620। कितना बना रहे बेटा सेकंड स्टेज में? 620। टीपी बढ़ा है लेकिन टीपी बहुत कम स्पीड से बढ़ गया, तो टीपी की यहां पे जो इंक्रीजिंग है वो क्या हो गई है? डिमिनिशिंग हो गई है। लेकिन तीसरे स्टेज में 5 प्लस 5 जब हम 15 लेबर ला लिए तो फिर भी 600 निकाल रहा है। पहले 5 मिलकर 600 निकालते थे, अब 15 मिलकर 600 निकाल रहे हैं। मतलब एडिशनल एक्सेसिव जो 10 लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? 0। सो चेंज इन इनपुट is having negative change in output, hence we will see negative MP during this stage which will lead to declining TP, and in this stage there is excessive variable factor for fixed factor and we see TP, MP, AP all declining. This is what is short run production function law of variable proportion or law of variable production.
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जहां पे टीपी शुरुआत में बढ़ता है, फिर एक दौर के बाद वो बढ़ता है लेकिन कम स्पीड से, और फाइनली उसके बाद वो डिमिनिश होने लगता है। आई होप तुम्हें लॉ समझ गया, लॉ की रीजनिंग समझ गए और सारा जो कंसेप्ट है वो यहां पर क्लियर हुआ है। इज इट ओके? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, सी यू ऑल टुमारो।